Nitai go namo Nitai go namo Aniya premera manya Bhasai lalabani Premer banya loya Nitai I love Gaura Deshi Dubila Bhakata Gana Dinahi Nabashe Dinahi Napati Tapha Maranahi Vashe Brahmana Dulabha Prema Sabakariya Abhada Karuna Sindhu Kaliya Mohana Ghare Ghare Bhule Prema Amiyara Bana Lochan Vole Mora Nitai Devana Bajira Janiya Suniya Se Atma Gati Golo Ai Dayal Go Dayal Nitai Dayal Go Dayal Nitai Dayal Nitai Dayal Go Ha Molo Gaura Kishore Ha Ha Moro Gaura Kishore কবে দয়া করি শ্রীগোদ্রুম বনে দেখা দিবে মন চোরা কবে দয়া করি শ্রীগোদ্রুম বনে দেখা দিবে মন চোরা আর আনন্দ সুখদ কুঞ্জের ভিতর
ভিতরে গদাধরে বামে করি আনন্দ সুখদ কুঞ্জের ভিতরে গদাধরে বামে করি আর কাঞ্চন বরণ চাকর চুকুরা কাঞ্চন বরণ চাকর চুকুরা নটন সুবেশ ধরি নটন সুবেশ ধরি দেখিতে দেখিতে শ্রী রাধা মাধব রূপেতে করিবে আলা দেখিতে দেখিতে শ্রী রাধা মাধব রূপেতে করিবে আলা আর সখী গণ সঙ্গে করিবে নাটন সখী গণ সঙ্গে করিবে নাটন গলেতে মোহন মালা গলেতে মোহন মালা আনন্দ মঞ্জরি সদয় হইয়া এ দাসী করেতে দোরি আনন্দ মঞ্জরি সদয় হইয়া এ দাসী করেতে দোরি আর দুহে দিবে দিবে দুহার মাধুরী দুহে দিবে দিবে হেরিব নয়ন ভরি হেরিব নয়ন ভরি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 इस कीर्तन भक्तों को अनंग मंजरी की अनुगत सेवा बता बड़ा अनंग मंजरी सदय भैया दासी करे ते धरी दुहे निवेदिवी तुहार माधुरी हेरिब नयन धरी Ananga Manjari, feeling compassion, will take this maidservant by the hand and lovingly offer me to the divine couple. I shall then behold their sweetness to the full satisfaction of my eyes. और दूसरी देखो और एक हैं कबे हाहा गौरंग जस्ट फिनिश कबे हाहा गौरंग बोलिया कबे आहा गौरंग बोलिया बेटा अरे उसके पास ही था कबे हाहा गौरंग बोलिया हाँ जी हाँ 80 ভোজন শয়নে দেহের যতন ছাড়িব বিরক্ত হইয়া ভোজন শয়নে দেহের যতন ছাড়িব বিরক্ত হইয়া আর নবদ্বীপ ধামে নগরে নগরে নবদ্বীপ ধামে অভিমান পরি হরি অভিমান পরি হরি ধামবাসী ঘরে মাধু করি লব খাইব উদল ভরি ধামবাসী ঘরে মাধু করি লব খাইব উদল हर नदी तटे गिया अंजलि अंजलि शिव प्रभु पद जल नदी तटे गिया अंजलि अंजलि शिव प्रभु पद जल तोरु तले पड़ी आलस त्याजिब पाइब शरीरे बल
श्री राधा माधव नाम, श्री राधा माधव नाम। कांदिया कांदिया डाकी उच्च स्वरे ब्रह्म सकल दाम। कांदिया कांदिया डाकी उच्च स्वरे ब्रह्म सकल दाम। বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িব চরণে হৃদয়ের বন্ধু জানে। বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িব চরণে হৃদয়ের বন্ধু জানে। আর বৈষ্ণব ঠাকুর প্রভুর কীর্তন দেখাইবে দাস বৈষ্ণব ঠাকুর প্রভুর কীর্তন দেখাইবে দাস ও হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে তাই গৌর হরি राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते दामोदर रति वर्धन राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते भानुगरी नवसती लेके ललिता सती गुण रमित विचारे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव करुणां कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताई गौर हरि गौर प्रेमानंदे वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। चलो हरिकथा बोलो। ये अंजलि अंजलि क्या है? नदी तटे गया, नदी तटे गया अंजलि 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 हाथ में इसको अंजलि कहते हैं। आपने पुष्पांजलि करते हैं तो पुष्प माने फूल, अंजलि माने हाथ में लेकर के दिया तो पुष्पांजलि। जो इंग्लिश लिखा है yeah, palmful by palmful. palmful by palm। इसको अंजलि कहते हैं। आप सुनाने भी लगा दो हैंड को हाथ जो चम्मच पे लगा दो। Palmful, handful, handful or palmful? Handful नहीं होता, palmful. These are hands. हैंड तो ये पूरा होता है ना।
That's arm. This is arm. Hand, just This is part, hand. yeah. In Hindi, हाथ everything. पाम खोल पाम Arm. जी. This- हाथ में लिया बोलने से वो सेंस निकालता है ना है? So bring a handful of rice Handful or of rice. a handful of sugar, or you can say palmful. पाम खोलो सीधा Synonymous. So, सिनोनिम्स में नहीं है जो इससे मैंने किस सेंस से पढ़ा है उसको दिया गया है? वो मधुर जो स्वीटनेस निकलते है उसमें. नहीं अर्थात तब निकालते हैं ना Sometimes translating it directly doesn't make sense. Direct translation does not make sense. वो करने जाएंगे मतलब हाँ वो करने जाएंगे ठंडा लगता है मतलब एक क्या बोले ठंडा लग जाता है अच्छा हैं? सुबह ना ठंडा लग जाएगा धूप है धूप हो तब ठीक रहता है हैं? अभी सूर्य का तेज नहीं निकलता. आज से ये धूप नहीं निकला क्लाउडी फिर नवदीप क्या बोले वृंदावन परिक्रमा है ना भीड़ लग जाए तो हैं? जी. कालो अच्छा था धूप लग गई तो अच्छा था ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्णाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि यतां सुरतोर्पङ्गुर्ममन्दमतेर्गते मत्सर्वस्य पदाम्बुजसी राधा मदनमोहन तिब्बतविन्दारणकल्पद्रुमाद श्रीमरत्नाकरसिंहासनस्तु श्री श्री राधा शिला गोविन्ददेवो प्रेष्ठादवो सेव्यमानस्मरामि श्रीमान रसरसारम्भी वंशी वटतटस्थित कर्षण वेणु शनैर्गोपी गोपीनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 चैतन्य चैतामृतम मध्यलीला ऊनविंश परिचय ऊनविंश समझते कि नहीं 19 चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया था प्रयाग में यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ মালি হইয়া করে সেই বীজ আরোপণ শ্রবণ কীর্তন জলে করহ সেচন উপজিয়া বাড়ি লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায় বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্রহ্ম পায় তবে যায় তদুপরি গুরু বৃন্দাবন কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ তাহা বিস্তারিয়া হইয়া ফলে প্রেম ফল মালি হইয়া সেচে শ্রবণ কীর্তনাদি জল ইহা মালি সেচে শ্রবণ কীর্তনাদি জল यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपरे बा छिंडी जाए सुखी जाए पाता तबे माली যত্ন করি করে আবরণ অপরাধ হস্তি জয়ছি না হয় উদ্গম কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা ভক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব হিংসন লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ এক জল পায়া উপশাখা বাড়ি যায় শব্দ ইয়া মূল শাখা বাড়িতে না পায় প্রথমেই উপশাখার কর ছেদন তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন প্রেম ফল পাকি পড়ে মালি আস্বাদয় তবে লতা অবলম্বী মালি কল্পবৃক্ষ পায় তাহা সেই কল্পবৃক্ষের করহে সেবন সুখে প্রেম ফল রস করে আস্বাদন এই তো পরম ফল পরম পুরুষার্থ तार आगे तृणतुल्य चारि पुरुषार्थ चैतन्य महाप्रभु करने लगे। इस संसार में भ्रमण करते करते जो अत्यंत सौभाग्यवान जीव गुरु और भगवान की कृपा से भक्तिलता बीज को प्राप्त कर लेते हैं। भक्तिलता बीज के बारे में हमने क्या बताया? श्रद्धा है और कृष्ण सेवा वासना। कृष्ण सेवा वासना और श्रवण कीर्तन जले माली हिया से बीज करे आरोपण। जो बीज को प्राप्ति हुई साधक कैसे ना माली माली माने गार्डन माली हिया करे करे से बीज आरोपण और श्रवण कीर्तन जले कर शेषण। गुरु से जो कृष्ण सेवा वासना रूप बीज को प्राप्त किया उसके क्या करना पड़ेगा? फिर हर रोज श्रवण कीर्तन रूपी जल उसमें देना पड़ेगा। बीज तो की प्राप्ति हुई किंतु बीज के यदि मिट्टी पर यदि नहीं रखा जाए और उसमें यदि जल आदि नहीं दिया जाए वो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण सेवा वासना रूप तो बीज तो प्राप्त कर कौन? साधक है। किंतु उस कृष्ण सेवा वासना रूपी बीज को नित्य ही उसमें जल देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। क्या? न श्रवण कीर्तन रूपी जल है। इस प्रकार श्रवण कीर्तन रूपी जल सिंचन करने पर धीरे धीरे वह लता बढ़ते रहे। फिर लता बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगी? उपरिया बाड़ी लता उपजिया बाड़ी लता ब्रह्मांड भेदी जाए। लता ग्रो होकर के है और बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगी? न बिरजा पार करके ब्रह्मांड के भेद करके चले जाएंगे। ब्रह्मांड में ये अष्ट दीवार है, ये अष्ट दीवार के भेद करके जाना पड़े जाएगी। अष्ट माने 8 जो दीवार जो है उसके भेद करके जाएगा। अष्ट दीवार क्या है जानते कि नहीं? बताओ।
गीता में तो बताया गया। ये जो अष्ट द्वार है, 8 द्वार को भेद करके जाना पड़ता है। पंच इंद्रिय आदि के जो है, और मन बुद्धि अहंकार चित्त, इसके अष्ट द्वार के भेद करके फिर विरजा लोक जाना पड़ता है। विरजा लोक के पार करके ब्रह्म ज्योति धाम है। ब्रह्म ज्योति धाम जाना पड़ता है, गीता में भी भगवान ने कहा है। और ब्रह्म ज्योति धाम के पार करके फिर परब्रह्म यानी वैकुंठ, और वैकुंठ से ऊपर अयोध्या, अयोध्या के ऊपर द्वारका, मथुरा, द्वारका, द्वारका के ऊपर मथुरा, और मथुरा धाम को प्राप्त करके फिर गोलोक में जाना पड़ता है। और गोलोक के ऊपर है वृंदावन धाम। इसलिए कह रहे विरजा ब्रह्म लोक भेदी परब्रह्म पाए तभी जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन। गोलोक और वृंदावन में यद्यपि कोई भेद नहीं है, तथापि दिखाते हैं ये गोलोक के कहा जाता है, वृंदावन की परिखा कहा जाता है। परिखा माने दीवार है, जैसे घर बना हुआ है और घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार रहता है, उसी प्रकार गोलोक है और वृंदावन के इतना ही दिखाते हैं। वृंदावन जो स्थान जो है वो कर्णिका कोरिकार, जैसे कमल के पद्म के अंतर में जो जहाँ पर केसर आदि रहता है, ठीक वही पद्म की कोरख स्थान स्वरूप वृंदावन धाम का माधुर्यमय था। और वहीं पर जाकर के कृष्ण चरण रूपी कल्प वृक्ष में वो आरोहण कर लेते हैं। तदुपरि कृष्ण चरण वृक्षे करे आरोहण, तहाँ विस्तरे हैं फले प्रेम फल। वहीं पर वह लता, भक्ति लता बीज जहाँ पर अंकुरित होकर के गोलोक वृंदावन में जो जाते हैं, अब उस समय कृष्ण प्रेम रूपी फल वहीं पर लग जाता है। इसमें अनेक रहस्य भी शास्त्रों में बता रहे हैं। ये वहीं पर गोलोक वृंदावन में जाकर के उनके कई शाखाएं हो जाता है। जैसे लौकी होता है ना, लौकी के लता जो होता है वो लौकी की लता अनेक जो है वो 6 हो जाता है, सब ब्रांचेज हो जाता है। उसके सारे सब ब्रांच के छोड़ काटना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार गोलोक के पहुंचते जाते वहीं पर भी अनेक प्रकार सब ब्रांच होता है। एक मूल होता है, एक मूल शाखा होता है और अनेक सब शाखा होता है, उपशाखा। जैसे सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्राण पृष्ठ सखी, सबको क्या करते हैं? स्ट्रीमिंग करना पड़ता है। क्या बोलते हैं? ट्रिमिंग करना पड़ता है। कट एक को रखना पड़ता है। वो कौन सा? इसको करना पड़ेगा। पहले तो 5 प्रकार के दास, शांत दास, सख, वात्सल्य, 5 बन जाता है। 5 में एक रस को आपको रखना पड़ेगा। क्या बोला? माधुर्य को रखना पड़ेगा। माधुर्य भी उसमें 2 शाखा निकल जाता है। उसमें एक सौकिया, एक परकिया बन जाता है। वहीं पर सौकिया को काट करके फिर माधुर्य के लिए जाना पड़ता है। माधुर्य में वहीं पर भी 5 शाखा निकालता रहता है, शांत दास, सख, वात्सल्य, माधुर्य। और उसमें माधुर्य में राधा जी के जो 2 शाखा निकलता है, जैसे
राधा चंद्रावली के मिलता है, राधा चंद्रावली के शाखा को काट दिया जाता है। फिर उसमें राधा जी के में माधुर्य रस में फिर 5 निकलता रहा, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्राण पृष्ठ सखी। सखी और नित्य सखी को रख करके बाकी सबको छाटना पड़ता है, ट्रिमिंग करना पड़ता है। अर्थात कौन रहेगा? एकमात्र मंजरी भाव रहे। और नित्य प्रत्यह साधक अभी कहाँ पर है? यहाँ पर है साधक, अभी यहाँ पर भजन करे। और उनकी चला गया कहाँ? लता कहाँ पर पहुंच गई? गोलोक वृंदावन पहुंच गई। किंतु यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? हर रोज जल देना पड़ेगा। जैसे लता के मूल में यदि पानी नहीं दिया जाए वो लता सूख जाती। तात्पर्य क्या है? श्रवण कीर्तन जले करह सेचन, श्रवण कीर्तन रूपी जल उसमें देना पड़ेगा। और तात्पर्य क्या है? वो भाव को प्राप्ति करने के लिए उसी प्रकार भक्त की संग आदि से वह कथा आदि श्रवण करना पड़ेगा। ये श्रवण कीर्तन है। जो भाव आपके प्राप्ति करना है, जो शांत हो, दास हो, सबको बात्सल्य माधुर्य, जो भाव आपके प्राप्ति करना है उस कथा को आपको श्रवण करना पड़ेगा। यही जल है। जैसे आपके मंजरी भाव प्राप्ति करना है तो अब उसी प्रकार मंजरी भाव संपन्न गुरु वैष्णव के संग करना पड़ेगा। जिसके संग करने से वो भाव नहीं होगा। है एक साधारण रूप में देखा जाए संग करो, साधु संग करो, किंतु साधु कौन सा साधु के संग करना? ये कहते हैं स्वजातीय आशय सत्व, समान भावना विशिष्ट साधु के संग करना पड़ेगा। उनसे वह समस्त कथा आदि कीर्तन श्रवण कीर्तन करना है। एक साधारण विचार और एक विषय विचार। साधारण विचार सब लोगों के लिए कहा जाता है। भले साधु संग करो। कौन सा साधु संग है? बोले सब साधु के संग करो। कहते ये साधारण विचार हो गया है। सबसे सुनो है, सबसे सुनो है, इस कान से सबसे सुनो है, इस कान से सबसे सुनो। कान है ना, भगवान ने कान दिया। 2 कान दिया। सबसे सुनो। ये साधारण विचार हो गया। किंतु जितने बड़ी निष्ठा आदि बढ़ते आगे एडवांस हो जाए तब एक के सुनो। हाँ सुनिए, किसके सुनो? एक से सुनो। पहले हाँ समझिए, एक कौन है? ऐसे ब्रज रसिक साधु गुरु के मुखारबिंद में श्रवण करे। जो रस में प्राप्ति करना है उस रस विषय कथा वह साधु से श्रवण करना पड़ेगा। समझ में आ रहे कि नहीं? है जैसे आपके माधुर्य रस सदन करना है, गोपी भाव प्राप्ति करना है, गोपी भाव संपन्न साधु से श्रवण करना पड़ेगा। जहां तहां श्रवण करने से नहीं होगा। है इसलिए करे यह माली सचेत श्रवण कीर्तन आदि जल, हर रोज ये श्रवण कीर्तन आदि है। जो भाव के प्राप्ति करना है उस भाव कथा मूलक आपको सेवा करना पड़ेगा, ये श्रवण करना पड़ेगा। है जैसे आपके वात्सल्य भाव सेवा प्राप्ति करना है तो उसी प्रकार माँ जसोदा के अनुगत्य में है वो समस्त सेवा आदि की भावना, चिंतन आदि, कीर्तन आदि है आपको अच्छा लगेगा। है कि नहीं? है वात्सल्य भाव संपन्न साधु से आपको कृष्ण की
बाल लीला कथा आदि श्रवण करना पड़ेगा, है कि नहीं? यदि सख्य भाव आपकी प्राप्ति करना है तो सख्य भाव संपन्न ऐसे साधु से श्रवण करो, है? और यदि आपकी माधुर्य व श्रृंगार रस प्राप्ति करना है, इसे श्रृंगार भाव संपन्न ऐसे साधु के संग करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अनारद्ध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांका अशाम्बस्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधु रससावका। श्याम रूपी श्रृंगार रस में किसी को यदि प्रवेश करना है तो अब ये 3 विधि का पालन करना पड़ेगा। क्या 3 विधि पता है क्या? है? वृंदावन धाम में बास और ब्रजरसिक साधु के संग कर। आज यदि किसी को प्राप्ति नहीं करने हैं सबके भोज भोजो, जैसे काली शिव दुर्गा इंडियन मंदिर में जाते हैं ना, किसको छोड़ते नहीं, हनुमान जी, काली शिव दुर्गा, भैरवी काली, काली भी अनेक है, भैरवी काली, जो इसके गणेश जी हैं। ऐसा नहीं बोले हम किसी को दुख देना नहीं चाहता, किसी के भजन नहीं करते दुख हो जाएगी, ये कहते हैं भाई तुम सबके क्यों करते, बोले किसी को हम दुख देना नहीं चाहता, कष्ट देना नहीं चाहता, सबके भजन करता है। वो कष्ट देना नहीं चाहता ठाकुर जी, सबको सुखी रखना। बढ़िया ये विचार अच्छा है कि नहीं? अरे घर में शिव काली दुर्गा है और जितने भी है, यहाँ कोई पत्थर भी मिल गया, रास्ते चलते थे चमकीली वाले पत्थर, बोले यही वो भी रख दो, इसको भी कष्ट देना नहीं है। अच्छा लगे हंसते हंसते आपको दम निकल जाएगा, किसी कष्ट देना नहीं है। भजन में निष्ठा, अर्थात यदि किसी को जी मंजरी भाव प्राप्ति करना है तो उसी प्रकार मंजरी भाव संपन्न संत महात्मा के वह कथा आदि श्रवण करना पड़ेगा। यदि श्रवण कीर्तन जल करो सिंचन, श्रवण कीर्तन रूप जल को किंतु अपराध यदि वैष्णव अपराध यदि उठे हाथी माथा ऊपर जा चिंता सुखी जाए पता। वैष्णव अपराध के मत्त हस्ती के, हाथी माथा माने मैड एलिफेंट, हाथी माथा मदमत्त हस्ती, मैड एलिफेंट के पास कोई आ जाए तो वो ऊँट से उसको पकड़ के पछाड़ देंगे। आज यही बता रहे ताते माँ, इसलिए क्या है ना, वैष्णव अपराध, अपराध छोड़ करके हमें भजन करना है। जब तक हम अपराध करते रहे और हरिनाम करते वो नाम अपराध में चले जाते हैं। इसलिए अपराध विचार करके चलना। इसलिए ऊपर बात छिन्निता सुखी जाए पता, जिस प्रकार मदमत्त हस्ती पगला हती बगीचा में प्रवेश करके है और वो पौधा के जो है जड़ समेत उखाड़ करके फेंक डालते, ठीक उसी प्रकार वैष्णव अपराध रूपी भजन साधन भजन उसको उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं। इसलिए ताते माली जत्न करी करे आवरण, इसलिए माली बने साधक अत्न प्रयत्न के जत्न करके वो पौधे के चारी तरफ फेंसिंग लगा देते, माने रक्षा करना पड़ता है।
किंतु शुद्ध भक्ति के साथ यदि लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि हो, उपशाखा कहा जाता है, वो आकर के भी मूल शाखा को क्या कर देते हैं, ढक जाते हैं। आज अर्थात हृदय में यदि अनेक प्रकार के यदि संसार वासना रहे तो भक्ति देवी ढक जाती। इसलिए कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा, निषिद्ध तार कुटिनाटी जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा दिए तो उपसखा। ये भुक्ति मुक्ति तो त्याग देना पड़ेगा है। भुक्ति माने बताओ, कोई समझ में आता है कि नहीं? मुक्ति माने लिबरेशन। भुक्ति क्या है सेंस ग्रेटिफिकेशन, भुक्ति का है। आज धर्म अर्थ काम इसके कहा जाता, त्रिवर्ग की कहा जाता है भुक्ति में। धर्म आदि धर्म ये सब भुक्ति मुक्ति में। मुक्ति आ जाते थे पंचम, फिर कहते हैं चतुर्वर्ग मुक्ति में आ जाता है। और पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है। संसार की भोग की वासना जब तक हमारी में रहेगा तब तक मैं वह दिव्य वस्तु की प्राप्त नहीं कर सकते, कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं। भुक्ति मुक्ति स्त्रिया जावत पिशाचिनी निवर्तते तावत भक्ति सुखस्तत्र कथ अबुद्धयो भवित। भुक्ति मुक्ति रूपी स्प्रिया, स्प्रिया माने इच्छा वासना, ये हमारे हृदय में जब तक रहेगा ये पिशाचिनी की भांति का उदाहरण है। किसके साथ तुलना दे रहे हैं? पिशाचिनी के साथ, which है उसके साथ तुलना। ये जब तक हमारे हृदय में रहेगा तब तक शुद्ध भक्ति नहीं होगी। इसलिए कहते भुक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाचिनी जावद हृदय वर्तते तावद भक्ति सुखस्तत्रम कथम अबुद्धयो भवेत्। संसार की वासना नहीं रहने पर भी जीव के हृदय में मुक्ति की वासना रह जाता है। मुक्ति की वासना भी नहीं भी रहे, उससे भी और सूक्ष्म क्या वस्तु रह जाता है? लाभ पूजा प्रतिष्ठा। ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि सब जल्दी निकलते नहीं है कि नहीं? ये शुद्ध भक्ति हुई ते हाँ, किंतु लदा संग ये सब क्या करना पड़ेगा? सब दूर करना पड़ेगा। निषिद्धाचार कुटिनाटी जीभिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जतो उपसकागण। लाभ पूजा प्रतिष्ठादि सब क्या है? उपशाखा के बारे में बता रहे, उपशाखा सब है। और उपशाखा आकर के मूल शाखा को क्या करते हैं? ढक देते हैं। भुक्ति मुक्ति पंचजत तार असंख्य तार लिखा, निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसन। शास्त्र में जो विधि विधान दिया गया है उसको पालन करना पड़ेगा। निषिद्धाचार दिया गया, जो ये काम ये कार्य करना ये कार्य नहीं करना, शुद्ध सदाचार पालन करना पड़ेगा। शुद्ध सदाचार पालन नहीं करे तो भगवत भजन नहीं होता है। ऐसा शुद्ध सदाचार पहले पालन करना पड़ेगा है। जैसे जितने भी वैष्णव सदाचार कहा गया है, भोजन के बाद हाथ धोना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, बाहर से आकर के पैर धोना चाहिए। कितने कुत्ते के मल में आप पैर लगा करके आए हैं और उसी में रसोई घर में घुस गया, रसोई बनाने लगे, ठाकुर तुम्हारे थोड़ी ग्रहण करेगा। ठाकुर जी की सेवा करने के लिए ये सब भी विचार वास्तव में लिखा।
है विधि मार्ग के लेकर नहीं चलना है। आज में शास्त्र में जो लिखा है, पैखाना पेशाब आदि करने के बाद सब धोना पड़ता है? ये समझ देते सब है। जिस कपड़े में आप पैखाने में जाते हो उस कपड़े को ठाकुर जी के पहनकर ठाकुर जी की सेवा नहीं होती, अपराध हो जाता है कि नहीं? सुन रहे कि नहीं? इधर आओ, सामने सुनो। कुछ सुन करके सुन लो, पालन नहीं करो, नहीं करो तो हम क्या करें? जितना कर लो एक दिन आएगा करने। हाँ, धोती पहनना आता है कि धोती है आपके पास? धोती है, धोती ये जैसे पहने हुआ। जब ठाकुर जी का आरती करोगे ना, पूजा करो, धोती पहन कर करना। ये सूट पंजाबी करने को नहीं होता है। ये तो विदेशी सब चर्च में जाते हैं ना, ऐसे पहन करके जाते हैं। चर्च में जाते हैं ना, जूता पहन करके भी बैठ जाता है। ऐसे वो सब शुद्ध सदाचार पालन करें, नहीं तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। कहता हम एकांतिक भक्त है, बोले नहीं, अपराध है। अब जब आओगे ना मंदिर में, ठीक है, आप बाहर जो जैसे आप पहनते हो, जब मंदिर में आओगे ना, एक धोती लेकर के आना है, और धोती पहन लिया, पहन करके ठाकुर जी का आरती करो, है? अच्छा रहेगा नहीं? पहले तो हिंदू बनना पड़ेगा ना, क्रिश्चियन बनने से थोड़ी होता है ना, मुसलमान बनने से थोड़ी है। तिखा रखना पड़ेगा, तिलक रखना पड़ेगा, कंठी रखना पड़ेगा, तब भगवान आपकी देह वस्तु के शिकार करेंगे, और नहीं तो होगा ही नहीं। शुद्ध सदाचार को पालन करना पड़ेगा। शुद्ध सदाचार को पहले पालन करें। इसलिए यहाँ पर करें निषिद्धाचार, शास्त्र में जो वस्तु निषिद्ध कहा गया, फॉरबिडन दिया, ये काम करोगे, हाँ, करना पड़ेगा। तब विषय को जो है ध्यान देना पड़ता है। भक्ति दुर्लभ भी है और दुर्लभ भी, इसलिए दुर्लभ का है। शस्त्र साधन कई हरिभक्ति सुदुर्लभा, अनेक जन्म करने पर भी हरिभक्ति का है सुदुर्लभा का है, अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। जो वस्तु जितना ही दुर्लभ है, उस वस्तु के लिए उतना ही हमें त्याग वैराग्य आदि स्वीकार करना पड़ेगा, है कि नहीं? गौड़ीय वैष्णव के उद्देश्य क्या? कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है। तो वो भी कृष्ण प्रेम भी कहते हुए आगे जाकर राधा प्रेम हमें प्राप्ति करना, राधा दास। तो गौड़ी वैष्णव के लोग जब राधा दास से प्राप्त करना है, तब उनको अनेक नियम का पालन करना है। चलो यहाँ पर निषिद्धाचार कुटी नाटी, कुटी नाटी, माने कुछ से न माने नहीं, जो शास्त्र में माने फॉरबिडन माने माना किया, उसको मानना पड़ेगा, है? कुटी नाटी, कुटी नाटी, कु माने खराब, नाटी माने जो शास्त्र में कहा गया, निषेध जारी किया, फॉरबिडन है, वो आपको लेना पड़ेगा, है? जैसे अभी चातुर्मास चल रहे हैं, चातुर्मास में विधि दिया गया है, बेगुन खाना नहीं चाहिए, लौकी खाना नहीं चाहिए, खाने के भी विधान दिया गया। और फिर 4 महीने में, श्रावण महीने में साग खाना नहीं चाहिए, श्रावण में साग नहीं लेते। श्रावण भाद्र मास में दही लेना नहीं चाहिए। आश्विन महीने में दूध पीना मना है। अभी आश्विन मास चल रहा है। कार्तिक महीने में क्या लेना है, क्या माना है? सरसों तेल, सरसों तेल नहीं माना है। ये वस्तु इसलिए शास्त्र में जो विधान दिया गया, उस विधान को पालन करना पड़ेगा।
है। इसलिए कुटी नाटी है, को माने खराब, नाटी माने जो निषेध जारी किया है। इसलिए निषिद्धाचार, कोटि नाटी, जीव हिंसन, जीव हिंसन त्याग देना, प्राणियों के हत्या करना जीव हिंसन कहा जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं जीव हिंसन क्या है? हरि कथा नहीं बोलना जीव हिंसन है। हाँ, उन्हें भाषा मिली है, शुद्ध हरि कथा नहीं बोलना ये जीव हिंसन है। जीव को, वो भी आत्मा के ऊपर हत्या हो रहे, आत्मा के ऊपर मैंने क्या बोले है? मुझसे तो खाना है। हाँ, आत्मा को देना पड़ेगा। आत्मा की भोजन क्या है? हरि कथा है। तो आत्मा के भोजन नहीं देना ये क्या हो गया? हिंसन हो गया। हिंसा करो, किसी को कष्ट देना तो हिंसा है, किसी को मारना काटना ये हिंसा हो गया। उसी प्रकार शरीर में जो आत्मा जीवात्मा बैठे उनके भोजन नहीं देना वो जीव हिंसन हो गया। आज में शुद्ध, वो भी हरि कथा, भी शुद्ध हरि कथा नहीं बोलना वो भी जीव हिंसन में आ रहे हैं। जो एडवांस डिवोटी है उनके निकट एडवांस यानी भगवान की गुज्जत गुज्जत में कथा गुरु कथा आदि कीर्तन करना, उसके आत्माचार्य भजन करते हैं। जितने भी आत्मा एडवांस होगा उतने परिमाण उच्च स्तर की कथा आपके श्रवण के लिए इच्छा होगी। ये इच्छा कहाँ से आई? वो आत्मा की है, हमें वही कथा श्रवण करना है। आज जैसे किसी को मंजरी भाव प्राप्ति करना है तो क्या करना पड़ेगा? मंजरी भाव संपन्न भक्त के संग आदि करके मंजरी भाव की कथा श्रवण करना है। जैसे किसी दास्य भाव स्वक भाव प्राप्ति करना है, माँ जसोदा के अनुगत्य में स्वक भाव की कथा श्रवण आदि करना पड़ेगा। जो जिस रस के भक्त होगा उस रस के भक्त के संग आदि करना। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर देखो, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत् पिशाचिन यदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्तत्र कथम अबुद्धो भवेत्। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जब तक हृदय में रहेगा तब तक शुद्धा भक्ति हृदय में प्रकट नहीं होगी। भागवत में भी प्रथम द्वितीय श्लोक में कह रहे धर्म परिचित कोई तो वस्त्र परम निर्मत्सनाम सतम विद्ध वास्तव तापत्र उन्मूलम श्रीमद् भागवतम महामुनिकृत किंग बा परेश्वर श्रद्धो हृदय अवरुद्ध। श्रद्धो हृदय अवरुद्ध पृथ्वी सुश्रुभी कथा श्रवण के लिए कहा है। श्रीमद् भागवत में इस श्लोक के द्वारा क्या बताया? धर्म प्रजित कोइतवत्र, कोइतव माने कपट है। कपट धर्म के श्रीमद् भागवत किसी प्रकार अनुमोदन नहीं कर रहे। धर्म प्रजित कोइतवत्र है। इसके कपट धर्म, हमारी कपटता क्या है? जीव की सबसे बड़ी कपटता क्या है? मुक्ति की इच्छा। इससे बड़ी यार कपट कोई नहीं है। और मध्य मुक्ति वंशा कोई तो प्रधान जाहिते कृष्ण भक्ति हन अंतर्ध्यान। मुक्ति की वांछा को त्याग देना पड़े। वांछा माने इच्छा। इस प्रिया व इच्छा को क्या किसके साथ तुलना दिया? पिशाचिनी के बाद। क्या बोला? किसके किसके बोला? ये स्प्रिया, स्प्रिया के साथ उदाहरण दे रहे। किसके साथ?
पिशाचिनी के साथ। अर्थात भुक्ति मुक्ति रूपी स्पृहा पिशाचिनी जब तक हमारे हृदय में नृत्य करेगी है, तब तक शुद्ध भक्ति प्राप्ति नहीं होगी। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाचिनी निवर्तते तावत् सुखं तत्र भव कथम अबुद्धो भवेत् है। ये कारण यदि किसी को यदि प्रेम प्राप्ति करना है तो हृदय से मुक्ति की वांछा, मुक्ति मुक्ति तो है ही है, तो त्याग देना, वैराग्य आ जाएगा। इसका निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसन है। जीव हिंसन दो अर्थ बताया है। दूसरे को कष्ट देना, प्राणी को हत्या करना, ये जीव हिंसन हो जाता है। और जीव हिंसन क्या बताया? शुद्ध हरिकथा नहीं बोलना है जीव हिंसन है कि नहीं? आत्मा चाह रही है, भोजन चाह रही है, हम भोजन नहीं दिया है तो अपराध। इसलिए कह रहे समस्त प्रकार उपाधि से मुक्त भुक्ति शुद्ध भक्ति सब उपाधि से मुक्त होना पड़ेगा। उपाधि क्या है? अनेक प्रकार डेजिग्नेशन है। मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, ये मेरा डेजिग्नेशन बन जाता है। मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ये भी सब डेजिग्नेशन में आ जाता है। चलो इसलिए कह रहे हैं सेक जल पाया लाभ पूजा, तो कि लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि इसके कहते उपसखा के साथ तुलना दे रहे। सेक जल पाया उपसखा बाड़ी जाए, स्तब्ध हो या मूल सखा बाड़ी दे ना पाए। तो उसी प्रकार साधक के हृदय में जब तक भुक्ति मुक्ति स्प्रिया लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि से उपसखा रहेगी तब तक प्रेमा भक्ति उत्पन्न नहीं होगा। और ये समस्त शाखा उपशाखा आदि रहने पर भक्ति देवी क्या होगी? वो अच्छा दी ढक जाएगी। इसलिए कहते हैं प्रथम ही उपशाखा करो छेदन, पहले क्या करते? उपशाखा को त्याग देना। अच्छा ये और ये फल कहाँ पर लग गया? गोलोक वृंदावन। और वह फल पक करके फिर इस जगत में आ रहेगा, माली उसका असर करे। अर्थात श्रवण कीर्तन आदि जल देने पर, जैसे गोलोक वृंदावन में आपकी जो लता चली गई है, वहाँ पर फल तो दे दिया, प्रेम फल। और प्रेम फल फिर पक करके कहाँ आएगा? यहीं पर आएगा, फिर माली आस्वादन करेगा। प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वादन है। तबे मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन, प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वादन। कहाँ से ही करो विखे करे सेवन, सुखे प्रेम फल रस करीब। सही परम फल परम पुरुषार्थ, तार आगे तीन तुल्य चारि पुरुषार्थ। बड़ी प्रेम फल तो पक जाता है? और कैसे आपकी प्राप्ति हो रही है? गुरु परंपरा से। लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाए, सही कल्प वृक्षेर करे ऐसे जन, सुखे प्रेम फल रस करी आस्वादन। मालिक क्या करता है ना? यहाँ पर वो प्रेम फल को प्राप्त करके वो आस्वादन करते हैं। साधक नील करे सही प्रेम फल रस करे आस्वादन, यही तो परम फल परम पुरुषार्थ, जार आगे तीन तुल्य चारि पुरुषार्थ।
धर्म अर्थ काम मोक्ष को क्या त्याग दे देते है। केवल प्रेम रूपी तो सुमिष्ट स्वादिष्ट फल को रख लेते हैं। और फल जब पक जाता है उसको मालिक क्या करता है, आस्वादन करते हैं। जब तक साधक के हृदय में कृष्ण वशीकरण औषधि रूप दास्य आदि प्रेम लेस तरह अंधकार के अधिक न शिवजंत समृद्धशाली रिद्धि समय सिद्धि समय श्रेष्ठता सत्य धर्म मूलक निज धर्म उत्कृष्ट ब्रह्मानंद निज निज चाक्षुष जीवन के चमत्कृत करे। यहाँ पर वर्णन हो रहा है, जब तक हमारे हृदय में रिद्धि सिद्धि ये सब की इच्छा रहेगी है, लोगों के निकट अनेक प्रकार चमत्कार ही दिखाने की इच्छा रहेगी। ये क्या होता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा है कि नहीं। और लोग आपके पीछे दौड़ेगा, भक्ति कहाँ है? ये सब के क्या त्याग देना पड़ेगा। शुद्ध भक्ति होते है प्रेम उत्पन्न अति शुद्ध भक्ति कही लक्षण। शुद्ध भक्ति अनुशीलन करने पर तो प्रेम उत्पन्न है। अन्नाभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्म देवनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तमा भक्ति की प्राप्ति करना है। कृष्ण सेवा की विरोधी अवैध ज्योतिषंग आदि दुर्नीति मूलक समस्त प्रकार के अभिनशाविहीन मुमुक्षु और बुभुक्षु मुक्ति की इच्छा कहते हैं, उसे कहा जाए मुमुक्षु कहा जाता है। और संसार की वस्तु भोग की इच्छा जो करते हैं उसके कहा जाता है मुमुक्षु कहा जाता है। ऐसे अर्थात मुमुक्षु और विमुक्षु के त्याग देना पड़ेगा। संसार की किसी प्रकार भोग वासना के हृदय में रखना नहीं चाहिए। एकमात्र गोविंद के शरण में क्या बताए, एकमात्र गोविंद के शरण में। जब तक गोविंद के शरण में नहीं आ रहे तब तक भगवान भी दे नहीं दे रहे है? मुक्ति की इच्छा, बुभुक्ष में भोग की वासना की इच्छा। संसार में अनेक जो है भोग की वासना, गृह घर की इच्छा, बढ़िया घर मिले, बढ़िया बिस्तारा मिल जाए, बढ़िया खाना मिल जाए, ये सब क्या है, भोग की इच्छा है। अर्थात एकांत की भक्ति योग है, माने एकांत की चीज भक्ति योग नहीं हो, भगवान नहीं देते। भगवान क्या करते हैं, पहली भक्ति मुक्ति देकर इसको वंचित कर देते हैं। भक्ति मुक्ति दिया तारे प्रेम धन राखें लुकाई। भगवान अति सहज में प्रेम धन नहीं देते हैं, इस सांसारिक वस्तु भक्ति मुक्ति देकर के उसको वंचना कर देते हैं। ठीक है, जब आपके रहे केवल एक ही जो नहीं और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल कृष्ण प्रेम चाहिए, तब भगवान कृष्ण प्रेम देंगे, नहीं तो ऐसे नहीं दे। भक्ति मुक्ति भक्ति मुक्ति दिया तेरे प्रेम धन राखे ने लुकाइया, लुकाया मैंने छिप करके रखते, जल्दी नहीं देते। प्रेम धन क्यों नहीं देते हैं भगवान जी? प्रेम के द्वारा मुझे वशीभूत कर दें। भक्त भगवान को कैसे वशीभूत करते हैं? प्रेम के द्वारा है। इसलिए भगवान कहते नहीं है
वो वस्तु देना नहीं चाहता। माँ जसोदा गोपाल को बांध लिया। कैसे बांधा? प्रेम रूपी रज्जु के द्वारा। प्रेम रूपी रज्जु के द्वारा। रज्जु समझते हुए नहीं, रस्सी। प्रेम रूपी रस्सी के द्वारा भगवान को बांध लिया। कौन सा प्रेम था माँ जसोदा के हृदय में? वात्सल्य प्रेम। वात्सल्य प्रेम रूपी रज्जु के द्वारा कृष्ण उनको भगवान क्या चाहते हैं? क्या मैं स्वतंत्र रहूं, किंतु भक्त भगवान को क्या करते हैं? प्रेम के द्वारा उसको बंद करके रखते हैं। जैसे छोटा छोटा बच्चा बहुत चंचल होता है, रास्ता में चलते हैं ना, पार्क में देखते हैं, उसको रस्सी दे करके बंद करके रखते हैं कि बच्चा कहाँ इधर उधर चले जाएंगे। बच्चा के कमर में रस्सी बांध देते हैं, जैसे कुत्ता ले जाते हैं ना, उसी प्रकार छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ मैं, उनके माँ वो बच्चे को कमर में रस्सी बांध देते हैं 4-5 मीटर रस्सी, फिर उसको खींचते हैं अलग, इधर मत जाओ, बच्चा तो इधर उधर दौड़ेगा ना। उसी प्रकार कह ये साधक के हृदय में जब तक भक्ति मुक्ति स्पृहा ये सब रहेगी, वो शुद्धा भक्ति उदित नहीं होगी। भक्ति मुक्ति आदि बांछा यदि मने হয় साधन करिले प्रेम उत्पन्न ना হয়। भक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची निधि वर्तते तावत भक्ति सुखस्तत्र कथम अबुद्ध भवित। भक्ति सामर्थ्य सिंधु में बना हुआ है। भक्ति मुक्ति रूपी इच्छा स्पृहा जब तक साधक के हृदय में रहेगा तब तक शुद्धा भक्ति कैसे उदित हो। ये तावत भक्ति सुखस्तत्र कथम अबुद्ध भवित। क्या चाहते हैं आप? भक्ति मुक्ति चाहते हैं कि प्रेम चाहते हैं? क्या चाहिए आप? प्रेम चाहिए। प्रेम चाहिए तो एक को छोड़ना पड़ेगा, भक्ति मुक्ति क्रिया स्प्रिया को छोड़ना पड़ेगा, और प्रेम के लिए ही आपको सर्वस्व देना पड़ेगा। क्रिया माने इच्छा, इसलिए कह रहे भगवान भी उसी प्रकार कहते हैं जैसे भक्त के क्या करते हैं, भक्ति मुक्ति आदि अगर उसे वंचना कर देते हैं, भक्ति मुक्ति दिया तारे प्रेम धन और रखन लुकाया। भगवान तो जल्दी प्रेम नहीं दे रहे हैं, संसार की वस्तु दिखाएंगे लोग, जैसे गुरुदेव उदाहरण दे रहे। एक महिला जो है अपने पति के खाना बनाया, क्योंकि पति ऑफिस में जाना है उनको 4 बजे खाना बनाना था। बच्चा उड़ जाता है, बच्चा ब्यां 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 करता है, तो बच्चा को खाना तो बनाना, पति के लिए खाना बनाना, क्योंकि पति 4 बजे ऑफिस जाएंगे, टिफिन ले जाते हैं ना, नहीं तो सारा दिन पति कहाँ खाएंगे। गौड़ी वैष्णव हो तो कहीं नहीं खा नहीं पाएंगे। यहाँ लहसुन होटल तो मिलता नहीं है, आजकल सब होटल भी हुई कहते हैं यहाँ लहसुन भी शाकाहारी है कि नहीं? बोलते कि नहीं बोलते? इंडिया में बोलते हैं, बोले प्याज लहसुन। बंगाल में तो और भी बोलते हैं, बोले मछली भी क्या गंगा फल है, तो गंगा में रहते हैं ना, इसलिए गंगा फल कहते। सफेद आलू है। अंडा के कहा जाता है क्या? अंडे होते हैं ना, बोले ये तो है सफेद आलू है, बोले इसको खाने से कोई पाप नहीं रहता है। तो मैं जो क्या बोल रहा था, एक महिला जो है अपने पति के लिए खाना बनाना था, और प्रातः काल में उनके बच्चा भी जग गया। अभी बच्चों को क्या करें? पति के लिए खाना बनाना पड़ेगा ना, 4 बजे उनके ऑफिस जाना है। तो क्या करते हैं देखो, वो माँ क्या करती है, बच्चा के जब लोली दे देते हैं, लाकड़ी का कुछ का इसको चूसता रहता
मुंह में डाल देते हैं। और आजकल क्या देता है वो आर्टिफिशियल, वो प्लास्टिक बना देता है, निपल्स बना देता है, वो चूसता रहता है, कुछ नहीं निकालता है। वो बच्चा सोचता है जी मैं माँ के ही स्तनपान कर रहा हूँ है। आजा उसमें दूध तो नहीं आ रहे है। और इतने समय माँ क्या करने लगी, अरे रसिकों ने सब काम कर लिया जल्दी जल्दी, और पति के लिए खाना बना दिया, टिफिन दे दिया। किंतु देखो वो बच्चा वो लोलीबा वो जो दे दिया, प्लास्टिक को दे दिया, उसे चूस रहे। उसमें कुछ समय के बाद उसको पता चला ये इसमें तो कुछ नहीं आ रहा है, भूख लग रहे। जब भूख लगते है बच्चा क्या करता है, रोना शुरू करते हैं, हाँ 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 हाँ। तो माँ उस समय क्या करते, सारे काम छोड़ करके बच्चा को स्तनपान करा दी। ठीक उसी प्रकार भगवान जीवों के संसार के जो है भुक्ति मुक्ति आदि दिया कर उसकी वंचना कर देते हैं, आज वंचना कर देते। और जब वो बालक जैसे भगवान के लिए रोना शुरू कर देता है, अब उस समय भुक्त मुक्ति के छोड़ करके भगवान प्रेम प्रदान करते हैं, समझ में आए। अर्थात भगवान पहले क्या करते हैं, भक्त के इस संसार की वस्तु देकर उसके वंचना करना चाहते हैं। जैसे माँ छोटा बच्चे का हाथ में लोली दे वो सोच रहा कुछ खा, किंतु ये ठीक उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, भक्त जो है ये सांसारिक वस्तु लाभ पूजा प्रतिष्ठा दे देते, किंतु बाद में मुझे पता चला ये संसार की वस्तु अनित्य है, दुखदायी है। संसार की वस्तु दुखदायी है कि नहीं, अब हेडेक बना देते हैं। पति कहे, पत्नी कहे, कुत्ते कहे, संसार में जितने वस्तु है, वेल्थ इज द परपेचुअल सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस। संसार में जितनी वस्तु है ये हमें क्या सब दुखदायी है। आपात रूप में कुछ सुख देते हैं, बात तो सही है। आपात मन बड़े नहीं आपात मतलब पहले उसको सुख मानता है, माने ऊपर से सुख लगता है, किंतु अंतर में क्या, वास्तव में क्या दुखदायी है, दुखदायी है कि नहीं। और सिर्फ पीड़ा बन जाता है, सिर्फ पीड़ा समझते हो, सिर में दर्द होता है, कष्टदायक है। इसलिए लिख रहे हैं भक्ति साईं महाराज जी इंग्लिश में लिखा, वेल्थ इज द परपेचुअल सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस। इस संसार में जितने भी भौतिक वस्तु जो है, जड़ वस्तु जो है, वो हमें दुखदायी पहले सुख रूप में प्रतीत होता है, किंतु अंत में क्या होता है, दुखदायी, दुख देते, कष्ट देते है। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं, फिर भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, आमी मिज्ञ ए मूर्खे विषय क्या न दिव, सचनाम में तो दिया तेरे विषय भुलाई। भगवान कह रहे हैं इस संसार के लोग तो जानते नहीं कौन सा उनके किसके लिए किस उनके लाभदायक है कि क्षतिकारक, वो जानते नहीं है। इसलिए संसार की वस्तु भगवान के पास मांग लेते हैं। काम स्थित हृदय ज्ञाना प्रवदंते अन्य देवता, गीता में भगवान कहते ये अर्जुन, इस संसार के जीव काम क्रोध के वशीभूत होकर के जड़ वस्तु की बहुमानन करते हैं, श्रेष्ठ मानन करते हैं, किंतु संसार के जितने भी जड़ वस्तु जो है सब दुखदायी है। भक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाच में भक्ति संसार की भोग की वासना जब तक हमारे हृदय में रहेगा तब तक हम लायक नहीं है कृष्ण भक्ति करने।
इसलिए भगवान भी कहते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं, चलो धन संपत्ति दे दिया, दे करके वो उसके बहुमानन करते रहते हैं। जैसे गन्ना है ना, गन्ना शुगर केन है, वो मीठा लगता है, चिबाने से रस आता है, और चिबाने के बाद फिर कुछ नहीं लगता, फिर फेंकना पड़ता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, पहले उनको ये सब दे देते हैं, शुगर कैन दे देते, गन्ना, और वो चिबाती दांत में जब लग जाता है, खून निकालते हैं, तो बोले हार नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, कष्टदायक होता है, दुखदायक होता है। जिसके पुत्र नहीं, वो भगवान के पास कहते, भगवान मुझे पुत्र दे दो। बेटा हुआ तो वो गोकर्ण क्या बोले, धुंधुकारी के भांति पिटाई करना शुरू कर, इसलिए कह रहे ना, आत्मदेव ब्राह्मण तो अंत में कहने लगे कि पुत्र नहीं था, अच्छा ही था, और पुत्र हो गया तो क्या, और रोज कहते पिताजी पैसा दो पैसा दो, तो गलत रास्ते में जाकर पैसा खर्च करके आते, तो पुत्र प्राप्ति करके फायदा क्या हुआ, कष्टदायक हुआ कि नहीं हुआ है। ये बेटा नरक क्या बोले, शराब पीने वाले हैं, दुष्कर्म करने वाले, फायदा कुछ नहीं, इसलिए पुत्र नहीं, वो मूत्र के रूप में आ गए, यूरिन रिजेक्टेबल है। लोग सोचते हैं पुत्र होने से सुख होगा, किंतु अंत में क्या होगा, दुखदायी। संसार में जितने वस्तु है वो सब दुखदायी, इसको हम जब तक अनुभव नहीं करने पा रहे तब तक हम भक्ति करने के अधिकारी नहीं बन रहे। परीक्षा लोकानो ईमान, ये संसार दुखमय है कि सुखमय है, इसके भली भांति पहले अनुभूति करें, नहीं तो दिल्ली के लड्डू जो खाया वो पछताया, और जो नहीं खाया वो भी, दिल्ली के लड्डू खाना नहीं है। तात्पर्य क्या है, या दिल्ली के लड्डू मतलब संसार की अनेक प्रकार के भोग की वासना, दिल्ली के लड्डू जो खाया वो भी पछता है, जो नहीं खाया वो भी पछता है। समझ में आ रहा है। इसलिए उपनिषद में कहे, परीक्षा लोकानो ईमान, भाली भांति देखें इस संसार में दुख है कि सुख है, इस संसार में दुख है कि सुख है। सामान्य सुख दिखाई पड़ता, सुख तो है लेकिन सामान्य रूप में, माने वेरी टाइड, अधिकांश सब क्या दुखदायी। सामान्य सुख के लिए इतना बड़ा दुख के हम सिर पर लेकर चल रहे हैं। संसार के जीवित बद्ध जीवता है, तो मूर्खता है। गधा है, गधा के खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। धोबी के जितने गंदगी कपड़ा वो गधा की पीठ पर ला देते, और सारी घर में जाकर को कलेक्ट कर लेते हैं गधा है, और फिर उनको साफ सुथरा करके गधा के क्या मिलता है, ना खाने के मिला, ना कुछ पहनने के मिला। कुछ नहीं, कष्ट लगता है। नहीं, गधा कैसे मूर्ख है, कहते हैं गधा जो है गर्मी के समय मोटा हो जाता है,
और बरसात के समय पतला हो जाता है। गर्मी के समय घास सूख जाता है, बहुत दूर चलते चलते कहीं थोड़ा कुछ मिल गया तो गधा बहुत दूर चलते, गर्मी के समय बहुत दूर चलते चलते जब चले जाते, पीछे घूम करके देखा तो मैं बहुत दूर आ गया, बहुत कुछ खा लिया। फिर सोचता है जो हमारे पेट भर गया। इसलिए गर्मी के समय गधा मोटा हो जाता है। और ठंडी के समय गधा क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। और बरसात के समय बारिश हुई, उस समय घास हरी भरी हो जाता, चाकते भर जाता है। थोड़ी सी जगह चरने पर मन उसके पेट भर जाता है, किंतु वो देखा घूम करके तो आज तो खाया ही नहीं कुछ, बहुत दूर आ गया है। इसलिए कहावत है ये गधा बरसात के समय पतला हो जाता है और गर्मी के समय मोटा हो जाता है। तात्पर्य क्या है? कर्मी लोग ये उदाहरण दे रहे हैं, कर्मी लोग गधे के भांति भी है। कहता है इतने दूर मैं तो कुछ किया ही नहीं आज, भगवान के भजन करके बैठे तो फिर जब उठेंगे तो आज तो मैं कुछ नहीं किया, है कि नहीं? ये गधापन है, मूर्खता है, अज्ञता। इसलिए कह रहे भुक्ति मुक्ति स्पृहा ये दोनों पिशाचिनी की भांति है। और साधक के हृदय में जब तक ये दोनों रहेगी, भुक्ति मुक्ति स्पृहा आदि रहेगी, तब तक उनके हृदय में शुद्धा भक्ति प्रकट नहीं होगा। हृदय को खाली करना पड़ेगा ना। बंसी कैसे बजते हैं? बंसी किस लिए बजता है? बोले बंसी के अंदर में कुछ है नहीं, खाली है, तब तो बंसी बजता है। उसी प्रकार साधक के हृदय में जब खाली नहीं हो तो भक्ति देवी कहाँ से प्रकट होगी? भक्ति मुक्ति स्प्रिया आदि करके भर, ये भक्ति मुक्ति स्प्रिया को क्या करना पड़ेगा? बंसी से निकालना पड़ेगा। ये निकालने कैसे निकालेंगे? कैसे? या भी सुनो, जो तो भर गया है, कीचड़ तो भरा हुआ है कि नहीं है? अभी ये हमारे हृदय में कीचड़ जो भरा हुआ है, इस कीचड़ के कैसे निकाला जाए, साफ किया जाए? तो इसलिए कह रहे हैं साधन भक्ति हुईते হয় রতির উদয়, রতি গাঢ় হইলে তার प्रेम नाम धार। पहले क्या साधन भक्ति पालन करना पड़ेगा। साधन भक्ति कहाँ तक है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ्रुति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति तक ये साधन भक्ति कहा जाता है। भक्त के साथ बैठ करके एक कथा आदि श्रवण आदि करना पड़ेगा। जब तक कथा श्रवण नहीं करो वह हृदय निर्मल नहीं होगा। इसलिए करे साधन भक्ति হইতে হয় রতির উদয়, আর রতি গাঢ় হইলে প্রেম প্রেম স্নেহমান প্রণয় राग अनुराग भाव महाभाव है। साधन उदाहरण दे रहे हैं। साधन भक्ति करते करते हृदय क्या होगा? निर्मल होगा। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के उद्देश्य क्या है? साधन भक्ति के दो फंक्शन है, टू फंक्शन ऑफ साधन भक्ति।
फर्स्ट फंक्शन क्या है? हृदय को निर्मल करना, वॉशिंग मशीन जैसे है। सारे कीचड़ को, कपड़ा को साफ करना है ना। कल तो ले ही नहीं गए कपड़ा, तो साफ कैसे होगा? है मशीन में डाल देते हैं, वो क्या करते हैं, रोलिंग करते रहते हैं, अप डाउन इधर उधर, जितने भी गंदगी को फिर बाहर निकाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार साधन भक्ति जन श्रद्धा से लेकर के आसक्ति तक के साधन भक्ति कहा जाता है। इस साधन भक्ति के द्वारा हमारे हृदय निर्मल होगा। है कृति श्रद्धा भविष्य साधना विदा नित्य सिद्ध स्वभाव से प्राकट्यं हृदय साधते। ये साधन भक्ति के पहले फंक्शन क्या हो गया? चित्त हमारे कैसे निर्मल हो। हृदय में अनेक प्रकार जो वासना आदि पड़े उसको कैसे दूर करना, डायलेट करना पड़ता है, तब तो जाएगा। और दूसरी साधन भक्ति के उद्देश्य क्या है, फंक्शन क्या है? नित्य सिद्ध जो ब्रजवासी जो जन जो है उनकी प्रेम रूपी सूर्य की किरण कण हम कैसे प्राप्त करें। ये कृति श्रद्धा भविष्य श्रद्धा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भाव से, नित्य सिद्ध जो परिकर जो है भगवान, वह उनकी भाव रूपी किरण कण कैसे हम प्राप्ति करें। ये साधन भक्ति उद्देश्य। कृति श्रद्धा भविष्य श्रद्धा साधना विदा नित्य सिद्ध स्वभाव से प्राकट्य निधि शब्द। और फिर कहते क्या, प्रेमा भक्ति में आ जाएगा। फिर है ना, प्रेम साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति आएगा। भाव भक्ति में शुद्ध सत्य विषयात्मा प्रेम सृजन भाग और रुचि विचित्र स्मरण कृदसु भाव उच्चते। चित्त निर्मल, साधन भक्ति के द्वारा चित्त निर्मल हो गया। उसमें क्या हुआ ना, प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, अर्थात संधिनी के ऊपर फिर संबित और राधिनी प्रतिफलित होगा। कृति शुद्ध सत्य विशेष आत्मा, चित्त कैसे निर्मल हो जाता है, स्फटिकबद्ध होता है। साधन के द्वारा चित्त निर्मल हो गया, स्फटिकबद्ध हो। आप लिखो तो कुछ आपको याद रहेगा, आप तो भूल जाते हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो। साधन भक्ति के दो फंक्शन है, एक चित्त को निर्मल करना, काम क्रोध आदि दूर करना, जैसे मैं वॉशिंग मशीन के उदाहरण दिया, वस्त्र धोते सारे मैला को बाहर करना, अर्थात हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मौद मात्सर्य आदि अनेक प्रकार के ये सब क्या होता है, दूर करना। यहाँ तक कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा को भी दूर करना, सबको दूर करना पड़ता है। ये साधन भक्ति के द्वारा। और दूसरी साधन भक्ति के दूसरी फंक्शन क्या है, नित्य सिद्ध जो परिकर जो है उनकी परिकर के हृदय में जो भाव है, वो भाव की किरण कर हमारे हृदय में कैसे हो। अरे रागात्मिक जन नित्य सिद्ध तो हम नहीं बोल रहे कुछ, रागात्मिक जन हम नहीं बोल रहे कुछ। क्या बोला, साधक। कौन सा नित्य सिद्ध परिकर, जो कृष्ण के नित्य परिकर, जो जैसे राधा ललिता विशाखा, ये सब कृष्ण के क्या है, नित्य परिकर है। अभी तो रागात्मिक जन समझ में नहीं आएगा। रागात्मिक राग जिसके हृदय में साबित होता है वो लोग रागात्मिक जन है, बात तो सही है, किंतु अभी नीचे के बात सुनो तब तो ऊपर के बात सुनो, ऊपर के सुन करके बोलने से नहीं होता है। अभी राधा आदि गोपियों की व नंद यशोदा आदि, इनके हृदय में जो प्रेम रूपी सूर्य के किरण कण, वो हमें कैसे प्राप्त हो। ये कृति सदा साधन नित्य सिद्ध स्वभाव है। आज नहीं, वह नित्य सिद्ध जो भाव जिसके हृदय में है, वो भाव आदि हमें कैसे प्राप्ति हो। वो भाव की प्राप्ति करने के लिए ये साधन करना पड़ेगा। क्या करना, चित्त को आप निर्मल करेगा। प्रसाद खाने के लिए क्या, थाली ठीक होना चाहिए ना, गंदी की थाली में प्रसाद ले लो, थाला धोना पड़ेगा, नहीं, बर्तन साफ करना पड़ेगा। है ना, 3 दिन खाया था उसको पड़ा हुआ है गंदगी पड़ा है,
उसके लिए बर्तन के साथ उसमें साधक के हृदय को निर्मल करना पड़ेगा। ये निर्मल करने के साधन भक्ति के फर्स्ट फंक्शन आ रहे, बर्तन धोना यानी हृदय को साफ करना है। फिर आकर के फिर साफ जब हो जाता है तब उसके बाद क्या होता है ना, संधिनी शक्ति आ जाता है उसमें, और संधिनी के ऊपर क्या पड़ता है उसके बाद संबित और राधिनी आ जाता है। आ जाता तो अब उसमें चित्त अत्यंत कमलीकृत हो जाता है। अच्छा, इसी को कहा जाता है शुद्ध सत्य विशेष आत्मा। शुद्ध सत्य चित्त अत्यंत निर्मल हृदय, ये भी जानना पड़ेगा। सत्य किसको कहा जाता है, शुद्ध सत्य किसको कहता है, विशुद्ध सत्य किसको कहा जाता है, मिश्र सत्य किसको कहा जाता है, इसे समस्त जानना पड़ेगा। सत्य बहुत है, सिर घूमता रहेगा। सत्य किसको कहा जाता है, विशुद्ध सत्य किसको कहा जाता है, मिश्र सत्य किसको कहा जाता है, ये सब एक एक करके सुखदान से विचार करना पड़ेगा ना। पहले एक कथा बोल दिया, साधारण रूप में एक कथा बोल दिया है। चित्त को क्या करना पड़ेगा, निर्मल करना। और निर्मल चित्त में क्या प्रतिफलित होगा, तो पहले क्या आएगा, वो संधि नहीं आएगा, है प्लेटफॉर्म बनेगा। और फिर संबित और साधनी है। ठाकुर जी के बैठने के लिए प्लेटफॉर्म आसन बैठना करना पड़ता है। जैसे बेदी बनाया, बेदी नहीं बना कर ठाकुर जी कहाँ बैठा हुआ है। उसी प्रकार हमारी हृदय रूपी सिंहासन को निर्मल करना पड़ेगा। ठाकुर तब तो बैठेंगे ना, है ना। ठाकुर जी के लेकर के ऐसे बैठा तो बैठ जाए। जैसे यही बड़ा बना, ये बना दिया, बना करके बहुत सुंदर चकचक करके फिर ठाकुर जी के बैठा जाता। फिर उसी प्रकार हमारे हृदय रूपी सिंहासन है, फिर गोविंद को वहां पर बैठाना पड़ता है। उसी प्रकार साधन के द्वारा चित्त को निर्मल करना पड़ता है। चित्त निर्मल होने पर फिर आएगा नित्य सिद्ध परिकर के हृदय में जो भाव प्रेम आते हैं वो प्रकटित होगा। वो भी प्रकटित होने के पहले क्या होगा ना, शुद्ध सत्ता आएगा। देखो शुद्ध सत्ता विशेष आत्मा प्रेम सुजंस रुचि, प्रेम सुजंस सम्मुख सम्मुख भाग रुचि भी चित्त स्मार्शन कृदोसु उच्च। पहले सत्य किसको कहा जाता है, सात्विक भाव से जो क्रिया आदि होती है वो क्या कहते हैं, सात्विक सत्य कहा जाता है। सात्विक भाव से जो क्रिया आदि होता है, काम क्रोध आदि नहीं रहता है, निर्मल चित्त होता है। फिर सत्य की और एक विश्लेषण कह रहे हैं, क्या कई अर्थ होता है। कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा आक्रांत चित्त के कहा जाता है शुद्ध चित्त कहा जाता है। कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा चित्त आक्रांत होनी चाहिए। क्या बोला, समझ में नहीं आया। कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा जो भी आप चिंतन करोगे कृष्ण विषय होनी चाहिए। वृत्ति माने आसक्ति। कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा जो चित्त आक्रांत हो जाता है, आक्रांत इफेक्टेड होता है। इसे आक्रांत माने इफेक्टेड होता है, हार्टफुली इफेक्टेड विथ कृष्ण वृत्ति है। इसे कहता है कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा आक्रांत चित्त ये कहा जाता है सत्य कहा है। आज जो शब्द बोले वो याद रखो। कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा आक्रांत चित्त जो होता है, इफेक्टेड जो चित्त होता है, उसी की कहा जाता है शुद्ध।
ये बहुत कुछ आपको याद रखना पड़ेगा ना। हम तो बोल रहे हैं, आप सुन रहे, इस कान से सुना, उस कान से निकाल दे, पढ़ना पड़ेगा। ये सत्य किसको कहा जाता है? सत्य की कई प्रकार, सत्य के उदाहरण दे रहा है। जैसे पहले सत्य किसको कहा जाता है? सात्विक भाव के द्वारा जो क्रिया आदि होती है, जिसके सात्विक कहा जाता, सत्य कहा जाता है। हृदय में काम क्रोध आदि होने पर उसके राजसिक का, ये क्या बोले, तामसिक कहा जाता है। अहंकार आदि के द्वारा जो क्रिया आदि होते हैं उसे कहा जाता है राजसिक हो जाता है। दीनहीन आदि के द्वारा जो क्रिया आदि होता है, हृदय जो रहता है, उसे कहा जाता है सत्य का है। शुद्ध सत्य और लाभ, क्या बोले, और कोई वस्तु सात्विक भाव रखना पड़ता है। सत्य, शौचो, दया, पवित्रता आदि हम कहते हैं सात्विक भोजन करो, तामसिक भोजन मत करो, राजसिक भोजन मत करो, सात्विक भोजन। उसी प्रकार पहले सत्य किसको कहा जाता है? सत्य की सर्वश्रेष्ठ डेफिनेशन क्या बताया? कृष्ण विषयक वृत्ति के द्वारा आक्रांत चित्त होनी चाहिए। किंतु उसके पहले हमारे क्या हो गया? चित्त निर्मल हो गया, सब काम कर गया। अभी कृष्ण विषयक, विषय क्या रहेगा? कृष्ण। क्योंकि कृष्ण छोड़ करके भक्ति नहीं होती है, और कृष्ण छोड़ करके प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण जो है समस्त रसों की क्या है? वो विषय है, कृष्ण विषय। और कृष्ण छोड़ करके जितने भक्त लोग, सब क्या बनता है? आश्रय बनता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव और शेल्टर ऑफ द डिवाइन लव। यही याद रखना पड़ेगा। इसे कहते हैं कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा चित्ताक्रांत। वृत्ति माने आसक्ति, जो कथा जो बोलेगी आसक्ति से कृष्ण में रहे। इसलिए कृष्ण विषय वृत्ति के द्वारा आक्रांत चित्त जो है उसे कहता है शुद्ध सत्ता। फिर शुद्ध सत्य भी कहा जाता है जहां पर कोई एक काम क्रोध आदि नहीं रहता है, भगवान की क्रिया। जैसे कृष्ण के माता पिता आदि जो है, नंद जो है, सब शुद्ध सत्य में प्रतिष्ठित है। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर लॉर्ड भगवान श्री हरि माया के गुण के अतीत कहा गया। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति। तो इसलिए शुद्ध सत्य के द्वारा ही सब गठित होता है। यहाँ तभी कृष्ण के जितने भी क्रिया आदि जो है, माता पिता, सब किसमें? शुद्ध सत्य से है। यहाँ तो कृष्ण के वसन भूषण सब शुद्ध सत्य से। ये चैतन्य आगे जाकर वर्णन करेंगे, यहाँ पर है। चलो, ये साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, साधन भक्ति के दो फंक्शन बताया। एक है चित्त के निर्मल करना, और दूसरी है नित्य सिद्ध परिकर की भावों की प्राप्ति करने के लिए जो इच्छा हुआ है। कृति भविष्य साधना विधा नित्य सिद्ध स्वभाव से प्रकटं हृदय साध, वो भाव को प्रकट करना है तो तुम्हारे पास, किंतु उसको प्रकट करना है। जैसे कि हमारे पास यदि है तो फिर उनके पास जाने की है। उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार आग सर्वत्र है, लकड़ी में आग है किंतु नहीं जल रही है। आग को फिर लेकर के लकड़ी में लगाने पर लकड़ी जलता है। देखो, आग के अंदर में लकड़ी आग है, किंतु आग लकड़ी को जलाने है। बाहर से आग लेकर के जब आग में दे, लकड़ी में देते हो तो आग जल जाता है, जलते हैं। उसी प्रकार, क्योंकि साधक में जो है प्रेम जो है, मुझे बता रहा, वो अत्यंत क्षीण रूप में है, वेरी माइनर है।
भक्त यदि संग के फलस्वरूप वो धीरे धीरे प्रतिफलित होगा, वो रिफ्लेक्टेड होगा, फिर आगे बढ़ेगा। ऐसा इसलिए प्रेम भक्ति भक्ति आदि कहते हैं, कहा जाता है क्या, वो एक दूसरे को संचारित हो जाता है। आपके हृदय में, जीव के हृदय में जो प्रेम है, वो प्रेम बहुत सूक्ष्म रूप में, जो कहते हैं नित्य सिद्ध प्रेम साध्य को गुण सर्वनादि शुद्ध चित्ते करो उदय। उदय मैंने मैनिफेस्ट तुम्हारे पास है, जो है वो पोटेंशियल रूप में है। इसलिए संत महात्मा के संग के प्रभाव से वो भी पोटेंशियल के पास आकर के वो बृहद रूप धारण करेगा। जैसे मैं उदाहरण दिया, रामानुचार्य उदाहरण दिया, बोले जिसे आग सर्वत्र रहने पर भी, जैसे लकड़ी में आग है ना, लकड़ी में आग है, किंतु आग नहीं जला रही, किंतु सूक्ष्म रूप, बाहर से आग लाग करके यहाँ पर जाओ, देखो जल। उसी प्रकार कह रहे हैं, ये संस्था को जानना पड़ेगा। मिश्र सत्य किसको कहा जाता है, शुद्ध सत्य किसको कहा जाता है। इसलिए शुद्ध सत्य विशेषात्मा प्रेम शुद्धांग समभाग रुचि भी चित्त स्मार्शन कृदोषु भाव, रुचि में कांति भी, हृदय अत्यंत निर्मल हो जाता है, कथा सुनने उसके बाद बड़ा आनंद आता है, आनंद आएगा तब। अभी कथा में आनंद नहीं आ रहा है, क्यों आनंद नहीं आ रहा है? ना शुद्ध सत्य प्रकट नहीं। जितना शुद्ध सत्य हृदय में आएगा चित्त, उतना ही है आनंद में उद्वेलित होगा। जो जैसे रस के साधक होते हैं, उस रस की कथा सुनकर उसके आनंद होता है। कोई बात्सल रस को दामोदर लीला कथा श्रवण किया, कैसे माँ यशोदा गोपाल को रस्सी के द्वारा बांध दिया, दामोदर लीला है, उसके आनंद आए। जो माधुर्य रस के है, वो रासलीला की कथा सुनकर आनंद होगा। श्री कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हुए चले गए, फिर गोपियां किस प्रकार कृष्ण के विरह में तड़पने लगे, गोपी गीत। फिर कृष्ण गोपियों के सम्मुख में प्रकट हुए, तासांग अभिर्विशोरी स्मरण मुकंदम, है कि नहीं? तात्पर्य क्या है? चित्त जितने निर्मल होते जाएगा, उसी प्रकार उच्च स्तर की कथा श्रवण में उसके आनंद होता है। अचित्त जितने निर्मल नहीं हो रहे हैं, उनके निकट कौन सी कथा श्रवण करो? साधारण कथा श्रवण करो। अम्बरीश महाराज जी की कथा, हनुमान जी की कथा और पांडवों की कथा श्रवण करा। पहले तो हमारे हृदय में जो माया मोह जो पड़ा, उसको दूर करना पड़ेगा। ये माया मोह दूर करने के लिए पहले कौन सी कथा हमें श्रवण करना पड़ेगा, बताओ? चित्रगुप्त महाराज कथा श्रवण करना पड़ेगा। चित्रगुप्त महाराज की कथा श्रवण करो। चित्रगुप्त महाराज कथा जानते कि नहीं? क्या वो तो वित्रासुर, चित्रगुप्त महाराज वित्रासुर जन्म। चित्रगुप्त महाराज है ना, जिसके अनेकों रानियां थी, सब प्रकार की भोग संपत्ति था, किंतु उनके पास एक पुत्र नहीं था। आज में अंगिराज जी की कृपा से उनके पुत्र प्राप्ति हुई, किंतु सारी रानियां क्या करने लगी? बोले जिसके पास पुत्र है, वो बड़ी रानी, उसका नाम क्या था? उनको पूछना तो बेकार है।
ना याद रखते ना कुछ है। तो बड़ी रानी के पास पुत्र है? तो पुत्र होने के बाद राजा उनके प्रति आसक्ति है, इसलिए आज जो रानियां ने क्या की, बोले पुत्र ही है हमारे विष कंटक हो गया है, इसलिए ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तो सारे रानियों ने क्या की, मिल करके वो बालक के विष पान करा दिए, बच्चा मर गया। चित्रगुप्त महाराज और रानी रोने लगे। आज फिर नारद अंगिरा ऋषि आए, उनको समझाया। फिर बालक के जो है बुलाया, बालक कहने लगे कौन किसके माता है, मैंने उतने दिन के मैं आया था, हाँ तुम शरीर कैसे छोड़ के चले गए? तो बताया जी मेरे जो विमाता ने जो है मुझे विषपान कराई, सारी कथा सुना। और बालक के द्वारा मुख से ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाया। बोले कौन किसके पिता होता है? बोले कितने बार मैं इनके पिता बना, कितने बार मैं इनको, ये मेरा पुत्र बने। ये संसार चल रहा है, मोहन दूर हो जाता है। अभिमन्यु जब कुरुक्षेत्र युद्ध में सप्तऋषि के द्वारा, सप्तरथी के द्वारा निहत हो गया, अर्जुन भी मोह में पड़ी। आयर कथा ना महाभारत में, अर्जुन तो रोने लगे। अर्जुन को रोना देख करके भगवान कृष्ण ने क्या बोले, चलो तुम्हारे पुत्र को मैं दिखाता हूँ। महाभारत कथा सुना कि नहीं? अर्जुन के लेकर के भगवान कृष्ण स्वर्ग में गए, देखा तो स्वर्ग में अर्जुन खेल रहे थे। अर्जुन देख करके अभिमन्यु कह रही मेरा बेटा आ गया, आना नहीं जाता। भगवान बुलाया, कृष्ण बुलाया तो अभिमन्यु आ गए। कहाँ? वो स्वर्ग लोग है। तुम्हारे पिता अर्जुन तुम्हें है रो रहे, तो क्या करने लगे, कौन मेरा पिता है? उतने समय तक मैं उनके पुत्र था, है? कौन किसके पुत्र होता है? कोई किसके पुत्र नहीं है। पुत्र होता है उतने समय तक है। वो भी कैसे था, किसी सबके ऋण चुकाने के लिए हम आए थे। क्या करने के लिए आए? सब ऋण चुकाने, और कुछ नहीं है। सुनने में बुरी लगे तो शास्त्र सत्य है। एक दूसरे के साथ हम जो कार्य ना, सब एक दूसरे के क्या ऋण चुकाने के लिए आए, सब और कुछ नहीं है। भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं, एक दूसरे के पायखाना सिर पर लेकर चल रहे हो, तो भक्तिनाथ कीर्तन में लिख सबको ऋण चुकाने के सब आए। सब ये विश्वास करे ना, वो बेटा कहे, बेटी कहे, पुत्र कहे, कन्या कहे, है जो पूर्व जन्म में जो जैसे है ना, तो वो आया पुत्र के रूप में आ गया, ऋण चुका करके चला जाएगा। है आज इसलिए वो कथा सुनाते हैं ना, दो मित्र एक साथ में जा रहे थे, लॉटरी टिकट मिल गया, 50-50 हजार मिल गया। एक मित्र बोले है ये इनको मार करके मैं पूरा पैसा ले लेता हूँ, एक होटल में भाड़ा करके रख दिया रहने। दूसरे मित्र ने किया कि बाजार में गए, दूध लेकर गया, दूध में जहर डाल दी और मित्र के पिला दी, मित्र मर गया है। और उनसे पूरा पैसा वो ले लिया। 50,000 अपने था और 50,000 मित्र के था ना, समझ में आ रहे। और इधर लोग प्रचार कर दिया, इसके फूड पॉइजन हो गए है। और उन्होंने के लोग दिखाने के लिए अपने मित्रों के परिवार को 10,000 रुपये दे दिया है। तो कितना हो गया?
40,000 रुपया रह गया, अपने 50,000 और मित्र के 40,000, तो कितने हो गए? 90,000। वो 90,000 के द्वारा वो क्या कर रहे, बिजनेस शुरू कर दिया है। और देखते देखते होती अल्प दिन में 1 साल 5 साल में उनके बिजनेस हु करके बढ़ने लगे, आपके धन बढ़ने लगे हैं। इतना बड़ा है, करोड़पति है, करोड़पति नहीं, और आगे क्या बोलते हैं, मिलियन ट्रिलियन बन गए है। सब लोग भाई रातों रात इतने जल्दी जल्दी इनके पैसे कहाँ से आए पता नहीं चला है। ऐसे करते करते मानो 15-20 साल हो गया, उसके बहुत फैक्ट्री हो गया, बहुत भी धन मिल गया है। बेटा भी अच्छा योग्य बन गया, बेटा की शादी कराना था, शादी के लिए तय भी हो गया है। वो क्या कहते शादी के पहले सगाई भी हो गया, केवल फॉर्मेलिटी रह गया विवाह का। विवाह के दिन भी स्थिर हो गया, विवाह होने वाला था एक दिन। इतने समय उनके बेटा के पेट में दर्द होने लगी, डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर कोई इलाज नहीं कर नहीं पाया। फिर उसके दुबई ले गए, ये सब तो घटना है। दुबई ले गए, बड़े सबसे अच्छा जो कीमती अस्पताल जो है वहीं पर भर्ती कराया, किंतु करोड़पति है ना, पैसा कम नहीं। 1 महीने तक वहीं पर ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर कुछ कर नहीं पाए, डॉक्टर के पता नहीं क्या। ऐसे करते करते सारे पैसा, वो जितने भी बिजनेस के जितना पैसा था ना, सब उसमें बेटा की सेवा में लगा दिया है। भाई कुछ भी हो है, बिल्कुल सारे बिजनेस सारे पैसा दे दिया, डॉक्टर को दिया, ये दिया है। करोड़ रुपया खर्च कर, कितने करोड़ रुपया खर्च कर दिया। डॉक्टर अंत तो बोले ये इसको अपने देश में ले जाओ, इंडिया में ले जाओ, 2-4 दिन बाद ही मर जाएगा। उसके कुछ नहीं है इसका। और डॉक्टर अभी तक भी उसके कुछ किसी प्रकार जो रोग निर्णय नहीं कर, डायग्नोसिस कर नहीं पाया, तो किस कारण से उनके हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है। कितने दवाई दे, ये दवाई वो दवाई, ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट, ये टेस्ट वो टेस्ट, करते 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 कितने करोड़ रुपया खर्च कर दिए। बिल्कुल वो पेनीलेस हो गया। या तो उनके पास पैसा नहीं है अपने बेटा को वापिस ले आने का, सच घटना। और वो चिंता कर रहे थे, डॉक्टर ने कहा दिया एक ले जाओ, रिलीज कर दिया, माने हॉस्पिटल से रिलीज कर, निकाल इसको ले जाओ अपने देश में। बेचारा उसके पिताजी बेटा के पास बैठे हुए थे। आधी रात में बेटा खड़े हो गए, बोले पिताजी, बोले मैं ठीक हो गया। पिताजी बहुत आनंद हो गए, वाह चल बेटा, तेरे लिए मैंने कितने पैसा, सारे बिजनेस के पैसा तुम्हें लगा दिया। बेटा कहने लगे पिताजी मैं जा रहा हूं। बोले क्यों, कहाँ जा रहे हो? बोले जहां से आए वहीं जा रहा हूं। पिताजी याद है आज से 20 साल पहले आप और अपने जो मित्र एक साथ में गए थे, लॉटरी लग गया, 50,000 आपको मिला, 50,000 आपके मित्र को मिला, और अपने मित्र के जो है आपने 20 दे करके मार दिया और उससे 50,000 रुपये ले लिया था। अपने 50,000 अपने 50,000, 1 लाख रुपया ले, और फिर उनके परिवार के जो है 10,000 रुपया आपने दे दिया है। सारी कथा सुनाने लगे है। और वही 90,000 रुपया लगा करके आपने बिजनेस स्टार्ट किया था और इतने करोड़पति बन गया था है। पिताजी वो व्यक्ति कोई नहीं था, मैं ही था, मैं ही आपके मित्र था।